First of all, I would like to thank All India Youth Federation people, organizer, to give me this chance to talk to you people. And please, comrades, accept my revolutionary greetings before I begin my talk. I was told, normally when I go for a seminar, I'm told, don't speak more than 15 minutes, don't speak more than 20 minutes. And one is not able to finish what one wants to elaborate in that much time. But this time I've been told that speak at least for 45 minutes. So I have plenty of time. And I will just share some of my thoughts with you people. And मुझे ये बोला है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिक्स करके बात करें, तो मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलूंगी और थोड़ा अंग्रेजी में बोलूंगी। अभी जब से कोरोना वायरस ने इस दुनिया में अपना प्रेजेंस बताया है, and country after country has got affected and people have gone in lockdown. So India has its own story to tell. और हमारे यहाँ पे मतलब जिस भी तरीके से our Prime Minister announced with just 4 hours notice countrywide lockdown for 21 days to begin with, and it has now continued. Since then, I think the biggest drama, and I'm not, मैं drama उस अर्थ में नहीं बोल रही हूँ derogatory term में, मैं बहुत seriously बोल रही हूँ कि जो drama सबसे ज़्यादा prominently इस देश में लोगों की नजर में आया, वो है हमारे करोड़ों मजदूर रास्ते पे चलते हुए। जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उस दिन से लेकर के और आज today when they are partially lifting the restrictions on travel, the most prominently thing which has come in picture is crores of workers ready to walk on the road hundreds of kilometers. And this has been looked at as a scene which we have not witnessed, but the scene which was created at the time of partition, when biggest possible migration took place, and the workers walking on the road is compared to that. और उसके ऊपर एक मतलब उसके पैथोस पे और उस ट्रेजेडी पे कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और अभी मैं पीपल्स आर्काइव फॉर रूरल इंडिया जो एक वेबसाइट है साइनाथ ने शुरू की है, उसको देख रही थी तो मुझे एक कविता मिली जो आदेश रवि ने लिखी है। वो कविता एक्चुअली वो ही इज अ राइटर एंड ऑल्सो अ सिंगर, सो ही हैज उन्होंने गाना गाया है ये तेलुगु में। इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश and we try to translate it also in Hindi. And I want to begin my talk today with that poem. I'll read it in English and then also in Hindi. The poem begins like this. How are the little ones holding up at home? I wonder how and with what my old mother feeds them. We toil daily to subsist, forced to migrate to make ends meet. The nation may be great, but our lives are miserable. The wicked disease struck us and wrecked our lives. What life is this? What life is this? A wretched life, a pathetic life, an abject life, a broken life. Is there a disease worse than poverty? Is there a solace greater than being with one's family? Just to be at home in these troubled times would have been enough. We would have survived together on some gravy and gruel. The kids flit and hover over my eyes all the time. My wife's laments chase me ceaselessly. What should I do? What should I do?
what to do, what can I do? No need for buses or trains. Oh sir, just let me go, my master. I will walk my way home. और इसको विनीत, जिनको कि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, विनीत तिवारी PWA के मेंबर है, उन्होंने मेरे लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया और मैं इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ना चाहती हूँ। कैसे होंगे मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर, कैसे और क्या खिलाती होगी मेरी बूढ़ी माँ उन्हें। जिंदा रहने के लिए हम रोज पसीना बहाते हैं, आखिर कुछ खाने कमाने की कोशिश में घर भी छोड़कर परदेश चले जाते हैं। ये देश बेशक महान होगा, लेकिन हमारी जिंदगियां बर्बाद हैं। हमें एक भयानक बीमारी ने घेर लिया है, जिंदगी तबाह कर दी है हमारी। ये जिंदगी क्या है ये जिंदगी? बुद्धा वीरान जिंदगी, दया पर पलती फटेहाल जिंदगी, टूटी बिखरी जिंदगी। कहते हैं हमें एक भयानक बीमारी ने घेर लिया है। सोचते हैं हम, क्या गरीबी से भयानक भी कोई बीमारी होती है? ऐसे में क्या अपने परिवार के साथ रहने से ज्यादा चैन किसी और चीज में मिल सकता है? ऐसे मुश्किल वक्त में बस अपने घर में अपनों के साथ होना ही काफी होता। रह लेते हम जिंदा थोड़े दाल भात के पानी के सहारे अपने घर में। अब मेरी आंखों में मेरे बच्चे सारा वक्त उछल कूद करते रहते हैं, पीछा करती रहती है हर वक्त मेरी पत्नी की शिकायत भरी आंखें। मैं क्या करूं? मैं हूं ही क्या जो कुछ करूं? करने को रखा भी क्या है? मैं कर भी क्या सकता हूं भला? मुझे बस की रेल की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, बस मुझे चले जाने दो। माए बाप, मुझे बस चले जाने दो, मैं अपने घर पैदल पैदल ही चला जाऊंगा। कविता पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। हम लोगों के वो बेवाई भरे पांव देख सकते हैं। हम याद कर सकते हैं 12 साल का बच्चा जो 100 किलोमीटर चलने के बाद घर नहीं पहुंच पाया। हम याद कर सकते हैं उस व्यक्ति को जो दिल्ली की सड़कों पे रो रहा था क्योंकि उसका बेटा मर गया और वो बिहार तक जा भी नहीं सका। हम याद कर सकते हैं उस व्यक्ति को जिसके पांव में प्लास्टर बंधा हुआ था और मंदसौर से जाते समय, मंदसौर में जब उसे कहा गया कि अब कोई व्हीकल नहीं जाएगा, पैदल ही जाना होगा, तो उसने कैंची लेके अपना प्लास्टर काट दिया, बोला मैं लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर चला जाऊंगा। ये बहुत दिल को हिला देने वाली त्रासदी है। लेकिन मैं अपना आज का ये जो आपके साथ बातचीत है उसको इस नोट से नहीं शुरू करना चाहती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि एक्चुअली इनके वो फटे हुए पांव, बीवाई से फटे हुए पांव और कंधे पे बैठे हुए बच्चे और इनके पांव की ताकत और इनके चेहरे पे जो एक विश्वास है कि हम चाहे कितनी भी तकलीफ हो, बिस्किट खा ले, खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, लेकिन हम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर चल के भी अपने घर चले जाएंगे। ये केवल त्रासदी की बात नहीं है, ये केवल उनके बेबस होने की बात नहीं है, ये उनकी ताकत की बात है। मुझे उनके उन पाँव में बहुत सारी ताकत देखना है और मुझे उनके चेहरे की उस डिटर्मिनेशन पे कि हमारा एक घर है जहां हम जा सकते हैं, उस डिटर्मिनेशन में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, there is a big revolutionary potential which we have to discern from this tragedy. And unless we do that, there is nothing else which offers us hope. Because every day when I look at mobile, when I look at my computer and try to see what is happening, I find such a lot of information, so many cases here, so many cases there, so many deaths there, so much of lockdown, this will not be allowed, that will not be allowed, and no end. There is no end to this kind of a complete mayhem.
एंड द ओनली थिंग दैट गिव्स मी सोलास, जिस चीज से मुझे एक आशा नजर आती है, वो इन सड़क पे चलते हुए मजदूरों से, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये बता रहे हैं कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो और कितनी भी मुसीबतें हो, हमारे पास में एक मकसद है अपने घर जाने का। मैं बहुत साल पहले हम लोग यहाँ इंदौर में एक हमारा संगठन था संदर्भ, एंड वी मेड वन प्ले देयर, और उस नाटक का हमने नाम रखा था कहाँ है हमारी जगह इस धरती पे। And that play related to tribals. उस समय I think it was sometime in 2004 or 5 when we made that play, when the Adivasis were attacked in Dang, and there were lots of instances of I think Orissa, Niyamgiri and other instances where tribals were, their land was snatched, their livelihood was snatched, and there was violence from the side of state. So we thought that these people are asking then कि हमारी जगह कहाँ है धरती पे, और इस नाम से हमने वो प्ले बनाया था। आज मैं सोचती हूँ उसका नाम गलत था। वो आदिवासी हो या हमारे देश की महिलाएं हों जिनके साथ बहुत ज्यादा जाति होती है, या हमारे देश के किसान हों जो गरीबी में और भूखे रहते हैं, या हमारे देश की मुस्लिम औरतें हों, वो ये नहीं कह रहे कि कहाँ है हमारी जगह, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जगह है, इस देश में हमारी जगह है, इस धरती पे हमारी जगह है, और हम अपनी जगह पे अपना we will claim our space, physical space, economic space, political space, हम उसे क्लेम करना चाहते हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन के पहले आपको पता है कि इतने बड़े पैमाने पे जो सीए और एनआरसी और एनपीए को लेकर के एजिटेशन हो, और शाहीन बाग से लेकर के पूरे देश में इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं जब बाहर बैठी, सड़क पे आकर के बैठी, तो हमें उतना ही आश्चर्य हुआ कि ये अभी तक घर के अंदर थी, अब ये कैसे सड़क पे आ गई है और ये क्या कह रही है। वो कह रही थी कि इस देश से हमारी our citizenship cannot be taken away from this country. We are citizens of this country. We have a place here, and we claim our place. और मैं सोचती हूँगी कि ये मजदूर जिनके लिए ये कहा जाता है कि अधिकतर सबसे पहली रिएक्शन ये होती है कि हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जरा भी सूझबूझ के साथ में कुछ बोलते नहीं है। केवल 4 घंटे का नोटिस लेकर के उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। कुछ प्लानिंग की होती, ये प्लान किया होता कि ये सारे मजदूर जो बेकार हो जाएंगे अपने घर पहुंच जाते तो ठीक रहता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये मजदूर अपने घर पहुंच जाते, सवाल ये है कि ये मजदूर जो अपने घर से बाहर निकल के दिल्ली, बंबई, इंदौर, अहमदाबाद के शहरों में आए हैं काम करने के लिए, जहां वो इतने दिनों तक रहते हैं, इतने सालों तक रहते हैं, वहां उनकी कोई जगह नहीं है। यदि आपने फैक्ट्री बंद कर दी और यदि आपने लोगों से कहा, मोदी जी ने कहा कि लक्ष्मण रेखा है, आप अपने घर से बाहर नहीं निकलिए, और जितने मिडिल क्लास के लोग थे, एवरीबडी वाज very comfortably settled inside the house, and these people did not have any house to stay in. Then they said कि यदि इन शहरों में हमारी जगह नहीं है तो हमारी जगह है, हमारी जगह हमारे गांव में है, और हम अपनी जगह, अपने घर जाना चाहते हैं, और हमें जाने की इजाजत दी जाए। और यदि इजाजत नहीं दी जाएगी, यदि हमारे लिए बसेस नहीं है, ट्रेन नहीं है, then we will walk all the way, but we will reach our place. So it is their statement कि इस देश में उनकी जगह है। आज का मेरा जो टॉपिक है, इतनी लंबी भूमिका के बाद में मेरा टॉपिक जो मैंने दिया था वो था रूरल इंडिया इन कोविड लॉकडाउन। और ये माइग्रेंट लेबरर्स जो महाराष्ट्र से, मुंबई से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, इंदौर से, सारे बड़े बड़े शहरों से जा रहे हैं, जो इन्होंने बोला कि अपने घर जाकर के हम थोड़ा दाल भात के पानी के साथ में we would have lived with gravy and gruel,
but we would have been with our children, we would have been with our mother, and we would have been comfortable there, even if it was there was no other facility which we get in urban India. Still, that is our home. तो ये सारे लोग जो है इनका अभी भी रूरल इंडिया के साथ में बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा जुड़ाव है, सबके घर है रूरल इंडिया में। बहुत साल पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है। हम हमेशा शहर में बड़े हुए और हमें उस बात का मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन आज समझ में आया। इसके पहले हमने we saw the periodic labor force survey, the latest one of 1917-18, in which again they are saying 70% of the population lives in rural India. तब भी हमें समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है, लेकिन इन मजदूरों को देख के, इनके चेहरों को देख के, इनके पाँव को देख करके मैं कम से कम आज समझ सकती हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो गांव में रहता है। और ये गांव क्या है, इस गांव की क्या स्थिति है, और इस गांव में रहने वालों के पास में क्या ताकत है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, अभी भी इतने साल के बाद में भी, आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे जो वर्कफोर्स है, सरकार का the workforce which is given by the data given by the government of India through national sample surveys, and the latest one being 1917-1918, the workforce is 460-470 million, 46 से 47 करोड़ तक वर्कर्स हैं। बाकी जो हमारी 132 या 133, 135 करोड़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें से वर्कर्स जो है, जो काम करते हैं, वो 460-470 मिलियन, 46-47 करोड़ वर्कर्स हैं। इन वर्कर्स में से 50% वर्कर्स अभी भी वो है जिनका लाइवलीहुड इज कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। 70 years के डेवलपमेंट के बाद, फ्री इंडिया के विकास के बाद में 50% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज स्टिल engaged in agricultural and allied activities for their livelihood. तो ये इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि जो आप कॉमरेड लोगों ने थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, या जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें ये बोला था कि जब when a country progresses, when a country develops, तब development is accompanied by industrialization. और जब इंडस्ट्री होती है तो कंट्री का सरप्लस जो है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट होता है, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होता है। जैसे आज आईटी है इतना बड़ा, ये फेसबुक जिसके साथ में कि मैं फेमिलियर नहीं हूँ, तो ये सारा जब सरप्लस ऐसे शिफ्ट होता है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विस में, तो साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो फिर एग्रीकल्चर से वर्कफोर्स शिफ्ट्स टू इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एंड इट शिफ्ट्स टू सर्विस सेक्टर। दैट इज द टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन हमारे कंट्री में तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आल्सो हैज टेकन प्लेस, एंड सरप्लस ऑफ द nation has shifted from agriculture to industry and to service sector, and now only some 15%, 12 to 15% of GDP, gross domestic product, or national income remains in agriculture sector. Rest all has shifted to industry and service sector. But industry and service sector has not created employment for the people who got displaced because of this transfer of surplus from agriculture to industry and from industry to service sector. Surplus transfer हुआ, industrialization हुआ, और ये industrialization जो हुआ, ये surplus जो transfer हुआ, ये agriculture से transfer हुआ, तो agriculture में जो लोग थे उनके पास में जो इनकम थी, उस इनकम का भाग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में गया। लेकिन उन लोग जो कि
पहले खेती किसानी में थे या खेत मजदूरी कर रहे थे, उन लोगों का वहां पे एम्प्लॉयमेंट तो कम हुआ, उनका सरप्लस तो कम हुआ, लेकिन उनको मैन्युफैक्चरिंग में भी जगह नहीं मिली और हाई लेवल इंडस्ट्री में भी जगह नहीं मिली। तो अभी भी 50% of the workforce is in agriculture, not because agriculture provides मतलब बहुत अच्छा वहां पे मौके हैं, you get good income, you get productive employment. No, not because of that, because there is no employment space created outside of agriculture, so people are still into agriculture. And the migrant labor which has come out of agriculture, because people are still in agriculture, surplus has moved away from agriculture, तो जो लोग एग्रीकल्चर में हैं 50% वर्कफोर्स, उनके पास में ना तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, ना इनकम है, और फार्म एक्टिविटी के लिए जो मेन रिसोर्स बेस चाहिए लैंड, ना ही उतना लैंड है कि 50% मतलब 235 million men and women will be able to find their livelihood in the land which is available in agriculture. तो main resource base भी नहीं है, productive employment भी नहीं है, और income भी नहीं है, इसलिए they are forced, जो कह रहे हैं कि हमें कुछ मिला नहीं गांव में तो हम काम की तलाश में, we were forced to migrate. तो इन लोग दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, और अधिकतर जो माइग्रेंट लेबर है वो जाता है, वो खेत मजदूर होता है या बहुत छोटा किसान होता है, सीमांत किसान होता है, और बाहर जाता है, उन घर में से एक व्यक्ति जाता है बाहर, 2 व्यक्ति जाते हैं बाहर, और बाहर जाकर के जो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलता है, मेजर सेक्टर विच गिव्स देम एम्प्लॉयमेंट इज कंस्ट्रक्शन. एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स जो अवेलेबल है वो है, जो एंगेज्ड है, वो अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर. तो ये जो एग्रीकल्चर में जब पूरा इनकम नहीं मिलता है और ये माइग्रेट करते हैं, जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, आप अधिकतर हम लोग भी यहाँ पे देखें कि जो माइग्रेंट लेबर यहाँ पे लॉकडाउन के बाद में रह गया, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी वहीं पे एक झोपड़ी बना के रह रहे थे, और काम खत्म हो गया तो इनकम खत्म हो गई, तो खाना खत्म हो गया, और जाने का साधन नहीं था. So a large part of the migrant labor which you see walking on the roads belongs to either construction work or a service sector, being employed in very small units, जहाँ पे कि किसी भी तरह का कोई एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है, वो स्मॉल यूनिट्स में कैजुअल लेबर की तरह. और फिर अभी बहुत सारे जो नए एम्प्लॉयमेंट आए हैं वो फूड डिलीवर करने के और स्मॉल थिंग्स डिलीवर करने के, या थोड़ा यदि और हायर लेवल में जाए तो ओला चला रहे हैं, या अभी देखा कि बहुत सारे रिक्शा, बिहार के जितने बंबई में रिक्शा चलते हैं वो सारे के सारे रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो बिहार से आते हैं. तो अभी लाखों की संख्या में हमने सड़क पे लोगों को पैदल चलते हुए देखा, और ऑटो रिक्शा, ये बिहार के मजदूर जो है, मजदूरी कहूंगी मैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते थे, ये लाइन लगा करके लाखों की संख्या में वहां से निकल करके वापस बिहार जाए. तो एक सर्विस सेक्टर में कुछ इस लेवल पे जहाँ पे कि बहुत कम इनकम मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग में इस लेवल पे जहाँ बहुत कम इनकम मिलती है, और कंस्ट्रक्शन में जहाँ बहुत कम इनकम मिलती है, वहाँ बहुत ही कम में गुजारा करके कुछ थोड़ी बहुत अपनी जो कमाई है उसको गांव में भेजते हैं, ताकि गांव में उनकी बूढ़ी माँ और उनके बच्चे और उनकी बीवी को थोड़ा बहुत इनकम का सपोर्ट मिल सके. कितने खराब तरीके से रहते हैं ये, मतलब एक दिन शायद आप लोगों को भी आइडिया होगी. मुझे मेरे दिल्ली में जो मेरा घर है वहां पे एक आइसक्रीम वाला आता था बिहार से, रोज आइसक्रीम बेचता था, और बहुत ही मतलब he looked starved all the time. Then suddenly he did not come for 3 months, and I was wondering what happened to him. Then he appeared after 4 or 5 months. So I asked him what happened, why were you absent? So he said, we live in a small room, some 10-12 people live in that small room, and when we sleep there at night,
स्टेप करने की जगह नहीं रहती, तो कोई रात को मेरा साथी उठा और जगह नहीं थी तो वो मेरे छाती के ऊपर उसका पांव चला गया, तो मेरे रिब्स टूट गए, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो इस तरीके से जो लोग रहते हैं उन लोगों को आप बार बार फोन पे संदेश दीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, 1 मीटर से दूर रहिए, 3 मीटर दूर रहिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए। जिनके पास में कि कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई साबुन की सुविधा नहीं है, आप कह रहे हैं कोरोना डिजीज से बचने के लिए आप बार बार हाथ धोइए। तो बेसिकली I want to make one very clear statement that the solution or the response of our government to corona disease and the fear of spread of infection was essentially a response meant for the middle class and the elite India at the cost of 70, 80, 90% of poor India, which had no means by which it could follow the instructions to save itself from the disease. तो ये गांव से माइग्रेट होके जो लेबर आया, वो यदि गांव में ही रहता तो गांव में क्या स्थिति है? जितने गांव में हाउस होल्ड्स हैं, ये भी गवर्नमेंट का NSSO का डेटा है कि जितने रूरल हाउस होल्ड्स हैं उसमें से 5 to 6% हाउस होल्ड्स हैव नो लैंड एट ऑल। उनके पास में हाउस लैंड भी नहीं है, घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है, शायद किराए के मकान पे रहते हैं या कहीं पे अनऑथराइज तरीके से रहते हैं। After that, 40% of households have no farmland. तो जो रूरल इंडिया है, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर मेन लाइवलीहुड है उनका, उनमें से ये 6-7% and 40%, so 46% or 50% of the households do not have land, which is the main resource base for agriculture. After that, you'll be surprised that 30% households, उसके बाद की जो 30% households हैं, उनके पास में जो लैंड है उसकी एवरेज साइज है 0.2 हेक्टेयर, मतलब आधा एकड़, 1 बीघा, आधा बीघा, 1.5 बीघा। इतने छोटे से लैंड के टुकड़े के ऊपर 30% हाउसहोल्ड्स एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आई थिंक 17% हाउसहोल्ड्स हैं, दे आर हैविंग लैंड, फार्म लैंड इक्वल टू 0.7 हेक्टेयर, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा, 1.5 एकड़। और 10% जो है उनके पास में 2 हेक्टेयर्स तक का लैंड है, जिसको स्मॉल फार्मर कहते हैं। तो ये कुल मिला करके करीब 93% हाउसहोल्ड्स जो रूरल इंडिया में है, उनके पास या तो बिल्कुल लैंड नहीं है या बहुत ही कम लैंड है, और आप कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर इज देयर मेन लाइवलीहुड सोर्स। केवल 7% फार्मर्स हैं जिनको कि सरकार मीडियम और सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज फार्मर के कैटेगरीज में रखती है, जिनके पास में कि 43% of total land, sorry, 47% of total land is with 7% households in rural India, and 53% land is with small and marginal farmers, जिनके पास में कि आधा एकड़ नहीं, आधा बीघा, 1 बीघा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जमीन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसके आगे जो मैं कहना चाहूंगी उसमें ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि बहुत ही छोटी संख्या में जो फार्मर्स हैं, जिनको कि आप बड़े फार्मर्स कहते हैं, उनके पास में लैंड है, उनके पास में पानी है, उनके पास में रिसोर्स है, दे प्रोड्यूस, दे मार्केट देयर सरप्लस, उनका इंटरेस्ट है कि प्रोक्योरमेंट की प्राइसेस बढ़ी हो, उनका इंटरेस्ट है कि उनका प्रोड्यूस एक्सपोर्ट हो। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। द मेजॉरिटी ऑफ रूरल इंडिया हैज नो रिसोर्स बेस टू think of markets, to think of exports, to think of income, to think of any productive employment. तो
70 years of development with planning and without planning, before globalization and after globalization, has given us an employment structure which is so distorted कि आप एक तो रूरल इंडिया से लोगों को बाहर नहीं ला सकते, एग्रीकल्चर से लोगों को बाहर नहीं ला सकते क्योंकि बाहर एम्प्लॉयमेंट स्पेस नहीं है, और एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट स्पेस है वो बहुत ही अनइक्वल और बहुत ही कम है। तो इस तरह का फ्रेजाइल इकोनॉमिक प्रोडक्टिव इक्विलिब्रियम जब हमने इतने सारे लोगों का बना के रखा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर 4 घंटे का नोटिस देते या 4 दिन का नोटिस देते या 4 महीने का नोटिस देते, इस तरह का शॉक जो पूरा इंडस्ट्री बंद कर दिया और पूरा कंट्री बंद कर दिया, इस तरह का शॉक सस्टेन करने की इकोनॉमिक स्पेस 90%, 95% ऑफ, या 90 रखती हूँ मैं, 93% ऑफ इंडिया के पास में थी ही नहीं। तो खाली 7% इंडिया को इस डिजीज से बचाने के लिए आपने 93% इंडिया को इस हालत में लाया कि वो कह रहे हैं कोरोना से मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम भूख से मर जाएंगे। कोरोना से मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा, गरीबी से ज्यादा भयानक बीमारी क्या है? तो ये जो स्थिति हमने बना के रखी है, और इस स्थिति में बार बार जब लोग अब सड़क पे आकर के आपको कह रहे हैं कि ये स्थिति हम मंजूर नहीं करते हैं, ये आपके नियम कानून हम मंजूर नहीं करते हैं, और हमारी जगह है इस देश में, हमारी जगह है इस देश की इकोनॉमी में, हमारी जगह होना चाहिए इस देश की राजनीति में, और ये बताने का उनका तरीका अभी शायद, हालांकि जो सीएए के समय मुस्लिम्स ने किया वो तो बहुत ही फोकस्ड और बहुत क्लियर था, ये माइग्रेंट लेबरर्स और हमारे किसान लोग जो है गांव में जो मार्च किए थे, बंबई में भी और मार्च करके दिल्ली में भी आए थे अपनी बात कहने के लिए, उन लोग शायद इतने फोकस तरीके से नहीं कह पा रहे हैं, या कह पा रहे हैं कि हमें, और जो बहुत सारे लेफ्ट के भी इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत सारे मिडिल क्लास के बहुत सिंपैथेटिक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इनको इस स्थिति में नहीं रखा जा सकता। यदि ये माइग्रेंट लेबर, और हमारे निर्मला सीतारमण बोली कि ये माइग्रेंट लेबर अब जब वापस आएंगे तो हम इनको सब्सिडाइज्ड रेंट पे घर देंगे, हम ये माइग्रेंट लेबरर्स को कुछ वेज की सिक्योरिटी देंगे, हम ये माइग्रेंट लेबरर्स को या ये सर्विस वाले जो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं इनको कुछ लोन्स देंगे, हम किसानों को लोन्स देंगे, हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इतने से ये संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इतने से ये संतुष्ट नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि ये मजदूर जो अभी इतने डिटर्मिनेशन के साथ वापस अपने गांव में गए हैं, जब लॉकडाउन खुले और इनको फिर से उसी एक्सप्लॉयटेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस बुलाया जाए, तो ये इनकार कर दें, ये इनकार कर दें इस तरह की गैर बराबरी के लिए, इनकार कर दें ऐसी जगह जाने के लिए जहां इनके पास में घर नहीं है। चाहे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इनको सब्सिडाइज्ड रेंट के हाउसेस प्रॉमिस करे, तब भी ये इनकार करें। ये इनकार करें इस इकोनॉमी से जहां पे कि कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो एयरपोर्ट बना रहा है, जो बड़े बड़े हाईवेज बना रहा है, फ्लाईओवर्स बना रहा है, बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज बना रहा है, और खुद के रहने के लिए घर नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन लेबर क्यों नहीं अपने खुद के घर बनाए? ये मैं जो कह रही थी ना कि छोटे छोटे किसान हैं, इनके पास में 43%, 47% लैंड अभी तक है, तो क्यों नहीं इन लोग फोकस करके कोऑपरेटिव्स बना के कहें ये 47% लैंड हमारा है, और इस लैंड पे जो उगेगा वो हमारे कंजम्पशन के लिए होगा, हम उसे मार्केट में नहीं देना चाहते, हम उसे ऐसे गैर बराबरी वाले मार्केट में नहीं देना चाहते। क्यों नहीं ये लेबर जो कि बहुत सारा खेत मजदूर जो कि कंस्ट्रक्शन के जॉब के इसमें और मैन्युफैक्चरिंग के जॉब के लालच में नंगे पांव और छोटी सी पोटली लेकर के गांव से गांव फिरता है और गांव से शहर फिरता है, क्यों नहीं ये अपने आप लेबर कलेक्टिव्स बना के कहें कि हमारा लेबर कलेक्टिव है, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एग्रो प्रोसेसिंग करेंगे, हम गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे एरियाज जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरियाज जो है, एग्रो प्रोसेसिंग के एरियाज जो है, जो हमारे फार्मिंग के लिए इनपुट्स चाहिए वो एरियाज है, जो पीडीएस की शॉप्स है, जो ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए रिजर्व कीजिए। हम यहाँ पे कॉर्पोरेट को नहीं आने देंगे। बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं शेमलेसनेस, very shamelessly our finance minister, when she announced the package for farmers, for the agricultural sector, she said that Essential Commodity Act will be abolished. Essential Commodity Act जो बनाया था सरकार ने कि जब when there is famine, when there is shortage of grain, then these commodities cannot be hoarded, these commodities cannot be transferred by individual farmers, and these commodities should be made available for people for their food. It was an act which was enacted to protect the population against hunger, to ensure that population gets minimum of food. आज जबकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, जब किसी के पास इनकम नहीं है, जब सबको भूख लगी है, तो निर्मला सीतारमन has the guts to say that we want to remove Essential Commodity Act and we want to create storage capacity. And वो 6 उन्होंने जो items दिए हैं जिसमें food grain is also included, storage capacity, so the farmers can store, they can export, and they get proper price for their commodities. Is that important that the big farmers and the corporate which is into marketing should get all facility to make profit out of the food which people are not getting enough to eat? एक उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को रिफॉर्म करने की बात की, और दूसरा उन्होंने कहा एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट जो है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के जुरिस्डिक्शन में आता है। हर स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट इनैक्ट करती है, और उसका मतलब होता है कि हर किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान, 1 बीघे वाला किसान, 2 बीघे वाला किसान भी अपना प्रोड्यूस गांव की मंडी में ले जा करके ही बेचेगा, और उस मंडी में अनाज का या प्रोड्यूस का ऑक्शन होगा, और उस ऑक्शन की और मंडी की व्यवस्था इसलिए है कि किसी किसान को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, किसी किसान पे जबरदस्ती कम दाम लेके उसका चावल ले लिया नहीं जाए। हालांकि ये जो भी मंडीज बनी है और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं, एंड it has not really ensured that these small and marginal farmers get a proper price for their produce. They are still exploited, but at least a legal provision is there now. In actually पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम मॉडल एपीएमसी निकालेंगे सरकार सेंटर की तरफ से, और फिर सब स्टेट गवर्नमेंट्स उस एपीएमसी के अनुसार अपने अपने एपीएमसी एक्ट को मॉडिफाई करेंगे। और मॉडल एपीएमसी एक्ट में उन्होंने ये बोला कि ये जो मंडी में जाते हैं किसान लोग और मंडी में जो बिक्री होती है, इसके अंदर बहुत सारे मिडलमैन आ जाते हैं, बिचौलिए आ जाते हैं who make profit. So we want to remove all these middlemen, and we want companies to directly buy grain from the farmers. So they allowed the APMC Acts in some states was modified so that companies like ITC could go and set up e-chopals where they could buy soya bean, or they could buy wheat, or they could buy grain directly from the farmers, avoiding the mandis. ये जो इन्होंने मॉडिफाई किया था 2003 के बाद में, कुछ गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था, उसमें क्या हुआ कि बिग फार्मर्स और कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Big farmers produce can be sold and companies can buy them directly. The companies, along with the direct purchase of grain, also contract farming started. So companies can instruct big farmers to produce tomatoes and potatoes, with which they can make sauce, with which they can make chips, and the land which is scarce will be used for these products which
you can call it junk food, which the elite India wants and which India can also export, whereas the 90% people who have to buy food grain for their daily bread, unke paas mein wo, the land will not be used for their needs and their survival. So I'm saying कि यदि ये वापस आए हैं मजदूर और यदि किसान है, यदि हमारे यहाँ इनको फोकस देने के लिए, इनको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यू कैन चेंज दिस एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम, यू हैव इनफ स्ट्रेंथ बिकॉज यू आर सो मेनी इन नंबर. तो आप यदि कलेक्ट हो जाएंगे एक साथ और कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो आप इस सिस्टम को बदल सकते हैं. आप पूरे एग्रीकल्चर को बदल सकते हैं और जब आप एग्रीकल्चर को बदलेंगे आप टेक्नोलॉजी बदल सकते हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर सकते हैं. और यदि आप एग्रीकल्चर को बदलेंगे तो फिर you will find space in industries related to agriculture and then you will extend beyond that. ऐसे लगता है कि अभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और हमारे यहाँ पे about 100 डॉलर बिलियनियर्स हैं. अंबानी अडानी को तो हम बार बार याद करते हैं, पर ऐसे 100 लोग हैं जिनके पास में कि बिलियन डॉलर से ज्यादा वेल्थ है और इतने ताकतवर कंपनीज हैं, इतने ताकतवर कॉर्पोरेट हैं. उनके साथ में क्या ये किसान लोग, ये मजदूर लोग अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे और इस सिस्टम को बदल सकेंगे? मैं सोचती हूँ कि यदि ये आशा हम अपने पास में नहीं रखेंगे कि ये सिस्टम बदली जा सकती है, और बदली जा सकती है तो इन्हीं लोगों के द्वारा बदली जाती है. दे आर द मेन एक्टर्स. These people who are walking on the road are the main actors. They only can transform this society and this economy. And if we do not have hope and we do not have confidence that this economy and this civilized society can change for values which are not barbaric, which are not exploitative, यदि हमारे पास में ऐसी आशा नहीं है तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है. मैं सोचती हूँ मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है यदि मैं इस तरह की आशा नहीं रखती हूँ कि इस देश की ये एक्सप्लॉइटेटिव बार्बरिक सिस्टम और इस दुनिया की ये इंपीरियलिस्ट बार्बरिक वॉर ओरिएंटेड सिस्टम, एंड आई डोंट नो वेदर कोरोना इज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर और नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक इट मे बी. तो ये सारा जो बार्बरिज्म है, आई वुड लाइक टू एंड बाय quoting Rosa Luxemburg, who said either you go for socialism or you go for barbarism. और यदि हमें एक समाजवाद और AIYF के कॉमरेड लोगों के साथ में तो ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि एक सिविलाइज सोसाइटी केवल समाजवाद में हो सकती है. सच्चे अर्थों में जनतंत्र डेमोक्रेसी केवल समाजवाद में हो सकती है. यदि इतनी ज्यादा गैर बराबरी है इकोनॉमिक लेवल में तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से आप सही अर्थों में डेमोक्रेसी नहीं हासिल कर सकते. तो हमारा अल्टीमेट मकसद तो यही होना चाहिए कि ये एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम बदली जाए. इस देश के रिसोर्सेज जो कि 70% ऑफ द एडिशनल रिसोर्स वेल्थ is controlled by 1% of the population, biggest possible inequality in India. Let us deny that and let us spend our energy and whatever जो भी हमारे पास में ताकत है, जो भी हमारे पास में डिटर्मिनेशन है और हमारे पास में एनर्जी है, हम इन देश के लोगों के साथ जाएं, इन देश के लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि आप मेन एक्टर्स हैं. आप मेन एक्टर्स हैं इस देश को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए. और अभी जब क्राइसिस है, जब ये सारी की सारी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी इज इन क्राइसिस, इट इज स्टॉप्ड, this is the best time to break. This is the best time to break this system, and you can break it because the economy, the exploitative economy, cannot function without the labor offered by 93% of our main heroes and heroines. I think I'll end here. यदि कोई question answers हो तो.
No? Okay then, wish you all the best.